देखिए, हर बार की तरह बकरीद के पर्व पे 18 से कैमरे के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं सभी स्थानों पे, सभी धार्मिक स्थलों पे और जितने भी संवेदनशील स्थान हैं।
देखिए, हर बार की तरह बकरीद के पर्व पे 1800 कैमरे के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं। सभी स्थानों पे, सभी धार्मिक स्थलों पे और जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से भी और साइबर सेल के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं और हमारा अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं और किसी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं डालें। कितनी जगहों पर से दंडाधिकारी और पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति? शहर में सभी जगहों पे जहाँ भी संवेदनशील स्थान है, जो भी चौक चौराहा है, जहाँ भी नमाज अदा किया जा रहा है, उन सभी स्थानों पे हमारा फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात है। साथ में अलग से क्यूआरटी भी मूव कर रही है। हर स्तर पे पदाधिकारी भी भ्रमणशील है। CIT हमारा फोर्स भ्रमणशील है, दंगा है और सैन्य दल भी है। यही वो दिल है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर खास अपने लिए बनाया। आज मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। मैं इस तरह का काम हिफाजत का सिस्टम इंसान से एक लम्हे के लिए अगर मतलूब हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सर्कस जिन्नात और शैतान इंसान को इस वाक़े में हिलाक इस वाक़े का तज़किरा किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जान-फरोशी और अल्लाह के लिए कुर्बानी देने के इस जज्बे को इस तरह अमल आमूल कर रहे हो तो यकीनन नतीजा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस चीज़ को तुम अच्छा समझते हो और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके फायदों से, इनकी अच्छाई हमें मीडिया बताती है, मुआलिजे इस्लाम हमें समझाते हैं, लेकिन वो शरीयत के उसूल पर पूरा नहीं उतरता है। जिसे तुम अच्छा समझते हो अनजाने का अच्छा नहीं है। Allah
یہ تمام امت مسلمہ کی نہایت ہی مسرت و خوشی اور ہمارے اولو العزم پیغمبر باپ بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یادگار ہم اپنے نبی آخری زماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق جو ہے ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں، جو ہم سب آج کی اس عیدگاہ کے اندر موجودگی ہمارے ایک اجتماعیت کو، ہمارے اس اتحاد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ہمارے دل کی اتھاکائیوں سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آج ہم اپنے اس خوشی کے دن میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے علاقے کے، اپنے پرشاسن کے، ہم اپنے اس حکومت کے، اور ہمارے لیے جو اس کرنگاہ عیدگاہ میں جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں اور ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور مزید آئندہ بھی اس طرح کی خوشیوں میں ہم اپنے برادران وطن کو شریک کرتے ہیں، انہیں بھی اپنے یہاں بلانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ پیش آنے اور ہر بھلے کام کے اندر ایک دوسرے کے تعاون کی بھرپور ہم اپنی طرف سے اور تمام اپنے امت مسلمہ علاقے کے تمام مسلمانوں اور برادران وطن کی طرف سے دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہماری اس خوشی کے اندر شریک ہوں اور ہمارے تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے اس مبارکباد کو پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب ویوستھا ہے کہ ہر ایک چوک چوراہا پر ویوستھا کی گئی ہے اور گشتی پارٹی گھوم رہی ہے، اور کس ناتھ نگر میں نواز سمپن ہو چکا ہے، اور جو ہم گھوم کو دیکھ رہے ہیں بقرعید کو لے کر سٹیس کے میدان میں سبھی مسلم بھائیوں کو بقرعید کی بدھائی دی۔ بھاگلپور ہمارا شانتی سدبھاؤ بھائی چارہ کے لیے جانا جاتا ہے، پورے دیش میں بقرعید دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ آج بھاگلپور ضلع میں بھی بقرعید سبھی بھائی ہمارے نواز ادا کیے، اس کے بعد اپنا قربانی کر رہے ہیں۔ سارے ہماری ٹیم، پوجا سمیتی کے لوگ، ضلع شانتی سمیتی کے لوگ، پرشاسن کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے چاہے ہمارے ڈی ایم صاحب ہو، چاہے ایس پی صاحب ہو، چاہے ایس ڈی او صاحب ہو، چاہے ہمارے ڈی ایس پی صاحب 2 ہو، چاہے تھانہ ادھیکش مہودے، سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بقرعید بھی ہمارے نگر نگم کے نگر آیوکت کا بھی بھرپور سہیوگ ہے، نگر نگم کی بھی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، اور ہمارے پوجا سمیتی اور ضلع شانتی سمیتی کے لوگ سبھی اپنے اپنے چھیتر میں لگے ہوئے ہیں کہ بقرعید بھی جو بھاگلپور کی خوبصورتی ہے، بھاگلپور میں ہم دونوں بھائی رام رحیم کے طرح سبھی پرو مناتے ہیں۔ بقرعید چاہے درگا پوجا ہو، کالی ہو، عید ہو، بقرعید ہو، چاہے محرم ہو، سبھی پر ہم دونوں بھائی رام رحیم کے طرح مناتے ہیں۔ ہمارا بہار کے مکھیا نتیش کمار، چاہے ہمارے تیجسوی یادو جی کا بھی نظر بھاگلپور پہ رہتا ہے۔ آپ بھاگلپور ہم دونوں بھائی سبھی پر شانتی سدبھاؤ بھائی چارہ سے مناتے ہیں، اور یہی دیش میں جو خوبصورتی ہے، بھائی چارہ کا پیغام پورے ہم دیش کو دیتے ہیں۔ پوجا سمیتی ادھیکش پپو یادو۔ حضور نمایاں تحبیرہ و تکبیرات تشریف
لن يكن قلبي خير تنزل الملائكة والروح فيها سمع الله لمن على سيدنا ومولانا محمد وبارك عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم القوم الكافرين. صلى الله تعالى على نبيه محمد واله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الذي ببركته مبارك منزل اشتياق لقائه في قلوب المؤمنين بالفضل والجود بالمراسيل والاخطار وعند الله الحمد لله الذي جعل النار على خليله كلمات فاخترقهم وجعل للناس إماما وقدره من قريب من الأنبياء وأمروا أنه ينفع الغلام المبشر به عن الكبر لا شريك له لا أنت واحدا أحدا صمدا المقتدى صدر العلا والهدى نور الهدى صاحب الله في الكونين رسولا نبيا مكيا مدنيا عربيا وريحا لا اله الا الله والله خليف الأسرار اختياراتنا وعزيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا بحايا ولا ما تثبت طالع روغا زور سے اٹھیا گناہوں سے انتفاع نکیرت مگر آنکھیں تنگ چاہے یا سرے گناہ یا دانت و دور نمایت تحقیرہ و تکبیرات تشریف كلمات واخترقهم وجعل للناس إماما وأمروا أنه ينفع الغلام المبشر به عن الكبر
لن ينال الله لحومها ولكن عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى. سمع الله لمن حمده الله أكبر. أتاك حديث الغاشية ناعمة لسعيها راضية تسمع فيها لاغية فيها ينظرون إلى الإبل كيف حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال. يا عزيز يا الله اللهم وفق آمين فنعيم الخير أسرار يا آمين أيام اور فضل السائل إلى عاجلة دائمة مستمرة جو بھی کسی الله أكبر ولله الحمد. الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع بعضا قطعه أو يأتي Selasa. آنکھیں اولادیں اے ایشور اے خدا ہے میرے مالک
आपने इस संसार को बनाया है, आपने इस दुनिया को बनाया है। बाबा हसन साहब की कभी जेब खाली ना मिले। सबसे पहले तो दिल की अमीक गहराइयों से तमाम फ़र्जंदान तौहीद को हम ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये क़ुरबानियों की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है कि जिस तरह से अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के आगे अपना सब कुछ क़ुरबान कर दिया, यहाँ तक कि बेटे की भी क़ुरबानी पेश कर दी, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसी मकबूलियत अता फ़रमाई कि आज तक हज़रत इब्राहीम की उस अज़ीम क़ुरबानी को याद करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा का हर वो फ़र्द जिसे वुसअत है वो क़ुरबानी पेश करता है, क़ुरबानी करता है। ये सौहार्द का, प्रेम का, सद्भाव का और एक दूसरे से मिलकर खुशियाँ बाँटने का त्यौहार है। इसमें आप खुशियों के साथ एक दूसरे को अपनी खुशी में शामिल करें और किसी भी काम से आपके किसी दूसरे समुदाय के लोगों को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखें। हम यही दुआ करते हैं पूरी मुल्क में खुशहाली आए, अमन और चैन और सुकून का माहौल बने। अल्लाह से इसकी दुआ करते हैं। हम सर जब इस खानकाह में अपना कदम को रखते हैं तो पूरी दुनिया को हम भूल जाते हैं, इसलिए कि हमारी जितने भी यहाँ पर हजरत साहब हैं, किसी के दिल में कोई नफ़रत की पर्दा ना तो नफ़रत की दीवार है। ये पूरी संसार भी जानती है, पूरी दुनिया भी जानती है कि बाबा हसन साहब क्या है। ये पूरी दुनिया जानती है, हम क्या बोलेंगे, पूरी दुनिया जानती है कि बाबा हसन साहब तो साधु हैं। यहाँ तो कितने लाखों करोड़ों की जीवनी चलते हैं जो कि बाबा को पता भी नहीं है। ये तो अब इसके पहले भी हम नहीं छोड़े थे कि बाबा एक परोपकार सेवा समिति भागलपुर सूजागंज शाह मार्केट में गठित किए हैं। रोटी बैंक उतना तो याद नहीं ये लोग, लेकिन जो जान रहे हैं। और उस कमेटी केवल बाबा की संकेत होती है, वो कमेटी निकलती है गरीबों की सेवा करने के लिए, और उसमें नाना प्रकार की सामग्री रहती है, दवा से लेके, कपड़ा से लेके, भोजन से लेके, कुछ नजराना तक रहते हैं। जी क्या कहेंगे इस खानकाह के बारे में? इस खानकाह के विषय में हम यही जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नफ़रत की पर्दा नहीं है। यहाँ पर हिंदू भाई आओ, मुसलमान भाई आओ, सबकी एक तरह की इज्जत मिलती है। बकरीद के मौसम पे जो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे हिंदुस्तान वालों को। और बकरीद के मौके पे ये मैसेज है कि क़ुरबानी, यानी कि अगर आपने क़ुरबानी दी, क़ुरबानी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के सामने झुक जाना। और अल्लाह ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कि अपनी बेटे की क़ुरबानी दे दो। तो जब बेटे की क़ुरबानी की बात आ गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने बेटे को क़ुरबान कर दिया, यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह है, अल्लाह की मानना है, अल्लाह की सुनना, अल्लाह की करनी है। यही मैसेज है इस बकरीद का कि अगर हम अल्लाह की सुनेंगे तो हमको जो रिवार्ड मिलेगा। और देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना कबूल फरमाया कि जब तक दुनिया कायम रहेगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जो है ये क़ुरबानी को अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया और ये क़ुरबानी जो है हो रही माशाअल्लाह। देखिए क़ुरबानी जहाँ तक सवाल है तो आप क़ुरबानी कीजिए, मना नहीं है, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते हैं, क़ुरबानी करना ही पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए कम से कम उनको तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाएं। आप तो क़ुरबानी करेंगे लेकिन उनको रास्ते पर उसके जानवर की खाल फेंक दें, भूटी फेंक दें, या रोड पर सड़क पर क़ुरबानी कर रहे हैं, वहाँ से रास्ता है, लोग आ जा कर रहे हैं, इसलिए इसकी हिफाजत करें कि भाई अगर आप सामान जो भी वेस्टेज है आपका उसको गाड़ दें, उसको कहीं अपने घर के पीछे गाड़ दें, उसको किसी ऐसे आदमी के सामने फेंक दिया जिसको नफ़रत है, जिससे सौहार्द भी ख़राब होता है। इसलिए आपस भाईचारे के लिए आप मज़हब ये नहीं सिखाता है कि ऐसा कोई काम करो जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। तो आपको तकलीफ़ से और इंतशार खलफशात से रोकना भी है और रुकना भी है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई तमाम क़ुरबानी करने वाले इसकी हिफाजत के साथ क़ुरबानी करें।
اس کی نگاہ میں رکھتے ہوئے قربانی کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو تانے سے ملا کر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ جاتی ہیں فلک پر راہ بنانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ بیرو راہ جانے کے لیے، اے تو ہماری عرض تلاشے طریقے سے آپ امام نماز ادا کریں گے، پھر خطبہ کہا جائے گا، آپ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد اپنے معمول تلاوت ہوگی۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور قرآن میں نماز کا نشہ معمول کے بعد بیان کرتا ہوں۔ اصل معمول آج ہمارا یہاں پر آپ حضرات سب بندی کر لیجیے، کچھ بھی ہوں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہوں، ہم پرستوں کی اگر رکھنے کی دل ہوئی نہیں، جان دیں گے کچھ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی سید القیوم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فرما، ملک میں امن و امان عطا فرما، تمام لوگوں کو ہر قسم کی پریشانیاں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی دشواریوں کی حفاظت فرما۔ قربانی باپ اور بیٹے کی قربانی، اور اب قربانی سے اللہ تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے منہ میں رکھا اس کے بعد سنا پڑ جائے گی اور لگاتار 3 تکبیر کہی جائے گی۔ شروع ہو رہی ہے، اس لیے آپ حضرات جو ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب بندی کر لیں، مکمل سب کو درست کر لیں۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ سر ادھر جا سر۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔
होगा मेंबर को हम पीछे आगे ले जाएंगे और जगह आइंदा के लिए बहुत बड़ा होगा। अब खड़े होने का वक्त ख़त्म हो गया है, उस वक्त आप लोग आ जाइए। जो खड़े हैं, जमात यहाँ पे शुरू होगी, नमाज नमाज का वक्त हो चुका है, आप आगे तशरीफ ले आए। पकड़ो बोलिएगा सर। ये ईद उल अज़हा का दिन है। असल में इस दिन तमाम लोग यकजा होकर के नमाज ईद उल अज़हा अदा करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह जमा होकर के यूनिटी और इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम ज़माने को दिया जा सके कि कितनों भी तादाद में रहें, हम मुत्तहिद रहते हैं और इत्तेफाक व इत्तेहाद में ही ज़माने के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे इंसानियत के लिए भलाई है। कोई भी काम हम अगर मिलजुल के करते हैं तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ना इत्तेफाकी से हमारे किसी भी काम के हम नहीं रहते। यही मकसद आज के इस नमाज का होता है। दूसरा, इसमें जो अदा होते हैं वो क़ुरबानी है, तो इसका भी दो तरीके से बयान किया जाता है। एक तो क़ुरबानी पेश की जाती है जानवरों के साथ में, इसमें यह भी बताया जाता है कि नफ्स के साथ क़ुरबानी करना, बुराइयों की क़ुरबानी करना, गलत काम से क़ुरबानी करना, यानी हर बुराइयों को छोड़ना भी एक मैसेज जाता है इसके ज़रिए से कि ताकि जानवरों की तो पेश की ही जाती है क़ुरबानी, साथ में कि हम हर बुराइयों से अपने आप को दूर रखें। ये इस क़ुरबानी का भी मकसद होता है। हम आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर जितना हम ज़्यादा मिलजुल करके रहेंगे ज़माने में, हमारे लिए यही फ़ायदा और भलाई का सबब बनेगा, क्योंकि हर दौर में इत्तेफाक व इत्तेहाद में ही भलाई रही है और उसी में कामयाब रहा है। कि जिसे कहने वालों ने कहा है कि इत्तेफाक का फ़ायदा और निफाक का नुकसान। अगर हम मुत्तहिद रहते हैं तो कामयाब होते हैं और ना इत्तेफाकी में किसी काम के नहीं रहते। और ये सारे समाज के लिए यही पैगाम है कि अपने आप में मिलजुल कर रहें और इत्तेफाक व इत्तेहाद से काम करते रहें। इसी में मुल्क की भी भलाई और अमन व आफियत है। इसी मेरा नाम मोहम्मद कुदरतुल्लाह शहबाजी है। मैं बरहपुरा जामा मस्जिद का पेश इमाम हूँ और यहाँ पे इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। साथ में मदरसे भी हैं, मदरसा अहले सुन्नत, उसमें भी तलबा को पढ़ाता हूँ। कुर्बानी हर साल मनाया जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में। ये क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 रात ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। आखिर ख्वाब की बिना पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिना के मैदान में ले जाकर ज़बह करने के लिए अपने बेटे को मैदान में लिटा दिया और गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये छुरी की नहीं चली और उसके बाद आँखों से जब पट्टी खोलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो बगल में एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा था और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। आज आप लोगों ने क्या कुछ किया है इसको लेकर? हम लोग इन्हीं की याद में आज कुर्बानी कर रहे हैं। बकरे की कुर्बानी पूरे गांव में बहुत शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना है? संदेश यही देना है कि अमन चैन से सब लोग कुर्बानी करें और कोई तरह का मामला नहीं हो और ज़िंदगी भर क़यामत तक करते रहें। परिचय बता दें। जी, मैं मोहम्मद शमीम मलिक, सेक्रेटरी बरहपुरा। आजा जवारे है, चमड़ा है सी
हमारा उपस्तर है, करता पूरा जाता है, हम अच्छे बेटा ताकुम नहीं हो और किसी को तकलीफ नहीं हो, किसका है बोझ नहीं पहुंचता और न जनाब कौन तकवा लिहाजा लिल्लाहियत के साथ और अल्लाह की रजामंदी के लिए। और दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बानी इसीलिए दी जाती है कि अल्लाह ताला उसके तकवा यानी परहेजगारी को कबूल फरमाता है और हमें पाक सुथरा करता है, लिहाजा इसका खास है। कुर्बानी क्या है? शरारत की कुर्बानी, एक आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी करे, चाहे रसूल अल्लाह के नाम से, अब्बा के नाम से, अम्मी और अल्लाह की तरफ से। चेहरा किबला की तरफ को दाहिना जानी पैर उसके शान पर रख दिया और उसके हाथ पैर को रस्सी से जकड़ी तरफ से एक आदमी खास करे, यही होता है। मस्जिद के बगल में आप लोग क्या हमने आंखों से देखा है, इधर उधर देखा, पूरा लेके आया, असल पूरा इधर उधर देखते उसको नहीं देखते, इधर वाला तो चुप है, दूसरी हो जाएगा या गाली एक दो देख के खाना पड़ जाए, लेकिन वो जो देख रहा है अकल भी करती है, शरीयत भी करती है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखा जाए, लिहाजा पूरा होना चाहिए। बड़े जानवर में 7 हिस्सा, जैसे 2 कुर्बानी है और 5 आप अकीका कर सकते हैं या इससे भी शिरकत होती है, लेकिन सातों में मिल के अगर किसी एक को दे देंगे सातों हिस्से से नहीं होगा, एक की जानिब मंसूब करके किसी की तरफ से देना होगा। आजा जवारे हुजूर है, कान है, चमड़ा है, इसकी नजर नहीं होने दिया जाए। अभी हमारा उपस्तर है, करता पूरा जाता है, आप अच्छे बेटा ताकुम नहीं हो और किसी को तकलीफ नहीं हो। अदायगी का दिन है, हम माशाअल्लाह उम्मते मुस्लिमा है, गुलाम मुस्तफ़ा है, गुलामी का सबूत है और वो अदावत अनाज ये सब और दिल से निकाल जाए और नमाज पढ़ने से पहले निकाल जाए। अल्लाह से आप पता जिसके दिल में अगर किसी भाई की तरफ से तस्वीर को अद्भुत करती और आज जो है 5 साल को खरीदार जामे मस्जिद से जाइए ताकि सब अमल अल्लाह के इधर से इशारा दीजिएगा भाई, इशारा दीजिएगा कि आपकी सब बंदी हो गई। ऊपर वाली छत में भी जगह है और मस्जिद के ऊपर में 2 जगह 2 छत है, सबसे ऊपर वाली छत, दूसरे मंदिर की छत, पहले मंदिर की छत, आप ऊपर चले जाए। काफ़ी जगह है माशाअल्लाह, धूप भी नहीं है, काफ़ी जगह है, असबाब मुहैया है, जाइए इस्तेमाल कीजिए और यहाँ जनाब पड़े रहने कोई फायदा नहीं, लिहाजा ऊपर चले जाए से ईद सुबह की नमाज अदा करेंगे। उसके बाद कुर्बानी का काम अंजाम देने के लिए आप जाएंगे, लिहाजा आप समझ सुन लीजिए कि उसका तरीका क्या है, कैसे कुर्बानी क्या है। सबसे अफजल ये बारह के मगरिब से पहले तक असर के वक्त तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, 12 तक, उससे कोई उसके बाद नहीं है। 3 दिन में सबसे आज का तकलीफ नहीं पहुँचाइए, सबको जगह दे दीजिए, जब दिल में जगह है जगह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आज मिल्लत का दिन है और जनाब आज जो है इत्तेहाद का दिन है, आज जरूरत निकालने हुजूर नाइब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मुझे पेश
پر اور آپ کے کپڑے پر لگ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. لہذا ہے میرے والد محترم آپ چھری کو چلاتے ہیں لیکن چھری کی اصل یہ ہے کہ چھری گلے کو کاٹ نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی ہے اور پتھر ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے چھری آپ مجھے صرف ایک مرتبہ گلا کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں. آپ کا رب بتائیں میں اسماعیل کے گلے کو کیسے کاٹ سکتا ہوں. حضرت چھری چلانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. میں نے ایک آخرت والوں کے لیے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. تمہیں ابراہیم کی خلت پر شک تھا, ابراہیم کی محبت. تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ فرمایا. قد صدقت الرؤیا. خلت کو رب کی بارگاہ میں سچائی کے ساتھ پیش کرنا. قربانی سچائی پیدا کرے, خلوص پیدا کرے, رب کی رضا حاصل کرنے کے. لہذا تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا اپنے دل میں سچائی پیدا کریں. اپنے تعالیٰ تمام لوگوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسی قربانی کو ہم تمام حضرات نماز کی طریقہ ادا کریں. سب سے پہلے نیت نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین الصلاۃ. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اور ادا کریں اور سماعت کریں. یاد رکھیں خطبے کا حکم گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتے ہیں. لہذا اس وقت جب خطبہ ہو تو بالکل بابا اور گلے ملائے اس نیت کے ساتھ ملائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس لیے کہ یہ سوکھی ہوئی ٹیڑھی وكبروا عقب الصلاة سلام المبعوثة من الشيطان الرجيم
الرجيم وإذ يرفع إبراهيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولكم أجمعين إنه هو الغفور. لا إله إلا الله وحده لا